Good morning, students. I am Anurag Singh, your maths teacher again in front of you with the same topic which I was explained in the last video. In the last video, I was explained how to change a set in roster to set builder form and then set builder form to roster form. That means conversion of set from one form to another form. Second, what is equal set, and third, what is what empty set. ये इतनी बारी हमने आपसे डिस्कस की थी. फर्स्ट क्या, what is set, types of representation of sets. One is set builder form and second is what, roster form. Next, how to change roster into set builder form and then set builder form into roster form. Second, empty set. Next, equal set. And in the continuity of that part, today I am going to explain same topic with the new questions of your textbook, NCERT textbook, which is question number 3. Question number 3, exercise number 1.2, question number 3 to onwards. Is that clear? From question number 3 to onwards. What is given in question number 3? State whether each of the following set is finite or infinite. You have to give finite or infinite. First question is what? Set of lines. Set of lines parallel to x-axis. Second question, set of letters of alphabet. Next, number of multiples of 5. Number of multiple of 5. Next, set of animals. Set of animals living on earth. Living on earth. And last, the set of circles. Set of circles passing through origin. These 5 questions are given. According to these 5 questions, we will explain what is the set of finite and infinite set. तो finite set क्या होता है बेटा? If the number of elements are countable in a set, then they are known as finite set. Means if the element of a set are countable, किसी सेट के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप उनको काउंट कर सको, then they are known as finite set. And if the number of elements in a set is non-countable, then they are known as infinite set. So first of all, set of lines parallel to x-axis, it is finite or non-finite. सपोज कर लो मैंने आपसे एक x एक्सिस ऐसे बनाया, अब इसके पैरेलल्स कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा? इन्फिनिट लाइन्स कैन बी ड्रॉन अप टू इन्फिनिटी ऊपर भी, अप टू इन्फिनिटी नीचे भी, राइट ना? तो देयरफॉर इट इज व्हाट? इनफाइनाइट सेट. कौन सा सेट होगा बेटा? ये इनफाइनाइट सेट होगा. सेट ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस. किसी भी एक्सिस के पैरेलल अगर आप जाओ तो जितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, you are free to draw the lines, right now? Therefore this is what? Infinite set. Next word, set of letters of alphabet. अल्फ़ाबेट के लेटर्स का सेट अगर हम बनाना चाहेंगे बेटा तो क्या बनेगा बता सकते हो आप? इनका सेट बनेगा A B C डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कहाँ तक बेटा? Z तक बनेगा. इसके आगे नहीं बन सकता. कि बन सकता है इसके आगे भी? हाँ, नहीं बन सकता ना. तो सेट ऑफ लेटर्स पे काउंट कर सकते हैं बेटा. इसमें टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं जो काउंटेबल है. तो दैट मीन्स व्हाट? फाइनाइट. क्या है ये?
फाइनाइट सेट हो गया। नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 के कितने मल्टीपल्स हैं? 5, 10, 15, चेक करो, 5, 10, 15 एंड ब्ला 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 अप टू कहाँ तक? चलते जाओ जहाँ तक आपका मन करे, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। नेचर को सब पता है, काउंट करने जाए ज़्यादा तो होगा, बट ये नहीं कर सकते कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। बिकॉज द नंबर ऑफ एनिमल्स आर काउंटेबल ऑन द अर्थ। नेक्स्ट, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सपोज कर लो मैंने एक एक्सिस फॉर्म की, यहीं पे होगा क्या उसका? ओरिजिन। ये क्या है उसका? ओरिजिन। अब यहाँ से जितने सर्कल्स ड्रॉ करने की इच्छा हो आपको, वो बनाते चले जाओ। तो हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन व्हेन दे पासेस थ्रू द ओरिजिन? इनफाइनाइट सर्कल्स। देयरफॉर इट इज व्हाट? इनफाइनाइट सेट। समझ में आया? तो व्हाट इज द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set are countable, then they are known as infinite set, and if the number of elements are uncountable, then they are known as infinite sets. Clear ना? Any doubt? ये पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना बेटा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रफ कर दे। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4? रीड द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक उठाओ और रीड करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है बेटा? इन द फॉलोइंग स्टेट ए इज इक्वल टू बी आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 4, ए इज इक्वल टू बी और नॉट, यही आपको बताना है। पहली कंडीशन है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। डन। दूसरा पार्ट है, सेकेंड पार्ट, ए इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16 एंड बी इज इक्वल टू 8, 4, 16 एंड 18। थर्ड क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी इज इक्वल टू x such that x is positive even integer, and x is less than or equal to 10. And the last question is what? Fourth question is given, a is equal to x such that x is a multiple of 10 and b is equal to दिया हुआ है बेटा इसमें 10, 15, 20, 25, 30 and so on. Verify they are equal or not. पहले हम बात करते हैं बेटा what is equal set. Two sets are said to be equal. क्या बोला मैंने? Two sets are said to be equal if their elements are same. Two sets are said to be equal if their elements are same. तो A के एलिमेंट्स कौन कौन हैं? A, B, C, D। और यहाँ पे B के एलिमेंट्स कौन कौन है बेटा? D, C, B, A। चेक करो, A इसमें है, यहाँ पे भी है, वेरी गुड। B है, यस। C, यस। D, यस। है कोई बचा कहीं पे? या इसमें या उसमें, कहीं नहीं बचा ना। दैट मीन्स दे आर इक्वल। A इज इक्वल टू B। अब इसमें आ जाओ बेटा, सेकेंड पार्ट चेक, दे आर इक्वल और नॉट? 4, यस। 8, यस। 12, नो। 12 फंस गया, राइट ना। 16, यस। इधर से 18 फंस गया। तो दिस इंप्लाइज
A is not equal to B. Clear? थर्ड क्वेश्चन, चेक दे आर इक्वल और नॉट. देखो ये कौन से फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में है, और ये कौन से फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म. तो पहले इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेक कर लेते हैं बेटा. क्या लिखा है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन 10. पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन 10. तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे बेटा, फटाफट बोलो, टेल मी. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. दे आर इक्वल और नॉट. चेक करो, पॉजिटिव इवन इंटीजर. नाउ चेक, सही लिखा है मैंने. 2, 4, 6, 8, 10. तो यहां पे भी देख लो, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10. दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गए बेटा, दिस इंप्लाइज A इज इक्वल टू B. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, इसमें आई थिंक शायद नहीं, A को किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है. A is given in set builder form but B is written in what, which form, roster form. तो पहले इसको हम चेक कर लेते हैं. A is equal to क्या लिखा है, x such that x मल्टीपल ऑफ 10. तो 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन. अब जरा B में मैच कराओ. यहां से बेटा 15 देखो, इसमें नहीं है, दोनों साइड से देखना पड़ेगा ना. तो 15 A में नहीं है. तो क्या हो जाएगा बेटा, दिस इंप्लाइज A इज नॉट इक्वल टू B. इज दैट क्लियर? इक्वल सेट के डेफिनेशन समझ में आई. इक्वल सेट क्या होता है बेटा, इफ बोथ द सेट कंटेन सेम एलिमेंट, इफ बोथ द सेट्स कंटेन सेम एलिमेंट देन दे आर नोन एज इक्वल सेट. और यहां पे देख लो 15 था बट इसमें 15 नहीं था. एक भी जगह प्रॉब्लम अगर आ गई तो समझ जाओ कि ये सेट क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा. इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5. इसको नोट करना है तो नोट कर लो बेटा. What is given in question number 5? Question number 5. Are the following pair of sets are equal? Give region. Are the following pair of sets are equal? Give region. तो आपको चेक भी करना है और अगर इक्वल नहीं है तो रीजन भी बताना है why they are not equal. ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5. पहला है A is equal to 2, 3 and B is equal to x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0. दूसरा दिया है बेटा, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, A is equal to x such that x, letter of the word F O double L O W and B is equal to y such that y is letter of the word wolf. आपको ये चेक करना है बेटा दोनों इक्वल हैं या नहीं है. इफ दे आर नॉट इक्वल देन गिव योर रीजन भी देना है, इस चीज को ध्यान रखना. सॉल्यूशन में आते हैं बेटा हम लोग. पहले हम फर्स्ट पार्ट A 2, 3. अब B को क्या लिखा है उसने बेटा, कौन से फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में तो है नहीं. रोस्टर फॉर्म में चेक करना आसान होता है बट वो कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है.
तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो सेट बिल्डर फॉर्म में उसको क्या करना पड़ेगा, पहले रोस्टर में चेंज करो, चेंज करने के बाद उसके रिजल्ट्स को वेरीफाई कराओ फिर दोनों साइड। तो B इज इक्वल टू व्हाट, सोल्यूशन ऑफ द सेट दिस ना। तो B को पहले का सोल्यूशन तो निकाल ले, फिर B लिखते हैं। B एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसी का सोल्यूशन चाहिए, राइट ना। सोल्यूशन मीन्स इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करना तो आपको 10th में ही सिखा दिया गया था, फिर भी देख लो। 6 का फैक्टर निकाल लो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम? x कॉमन लिया, x प्लस 2 आएगा, प्लस 3 कॉमन लिया, x प्लस 2 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट and x plus 2 in second bracket, therefore x is equal to -3 and -2। that means अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो a is equal to 2 and 3 and b is equal to -2 and -3। अब आप देख के बता दो दोनों इक्वल हैं या नहीं है, बोलो। therefore a is not equal to b। रीजन क्या लिखोगे? The element of A and B are not same. The element of A and B are not same. Therefore, they are unequal set. Statement में रीजन लिखना है आपको। हाँ, रीजन में क्या लिखोगे बेटा? Since elements of A and B are not same, elements of A and B are not same, therefore A is not equal to B। any problem? बोलो, समझ में आया? now we are going to solve question number 2। if x such that x, letter of the word wolf, तो A is equal to, बेटा जब भी ऐसा लिखना होता है ना तो हर लेटर वन टाइम, क्या बोला मैंने? each and every letter can be written at only one time। तो F आया, डन, कॉमा O कॉमा L कॉमा W, डन, FOLW। एंड B इज इक्वल टू, B किससे निकालना है बेटा? वुल्फ से निकालना है, WOL एंड F। अब जरा काउंट कर लो, FOLW, therefore A is equal to B। ये दोनों सेट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर? इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होगी और आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका क्या है बेटा? होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? होमवर्क है। उसको सिंप्लीफाई करना, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद हमसे आप डिस्कस कर लेना। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप हमसे पूछ लेना, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक सेट। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट बहुत ही मज़ेदार पार्ट है, उसको हम पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो पार्ट है बेटा सबसेट। अभी आपने क्या पढ़ा था? सेट। क्या पढ़ा था पहले आपने? सेट पढ़ा था। सेट का ही दूसरा पार्ट होता है सबसेट। क्या नाम होता है बेटा? सबसेट। तो हम लोग आज अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? सबसेट पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? सबसेट। क्लियर? अब सबसेट पढ़ने से पहले आप एक चीज़ ये जान लो, अगर हम मैथ से थोड़ा हट जाए, थोड़ा सा मैथ से हट के बायोलॉजी में चलते हैं, अपना एंटी सब्जेक्ट एकदम अगेंस्ट ना, बट थोड़ी सी कोलिन उसमें कनेक्टिविटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। कैसा होता है, अगर हम लोग अपना डीएनए चेक करें, डीएनए जानते हो ना, अगर हम अपना डीएनए चेक करें तो वो हमारा डीएनए किसके डीएनए से मैच करेगा? मम्मी के डीएनए से, पापा के डीएनए से मैच करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना।
इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डीएनए अगर हमारे मम्मी पापा के डीएनए से मैच कर रहा है तो वी आर सबसेट ऑफ आवर पेरेंट्स। हमारी क्वालिटीज़ जो हैं वो हमारे मम्मी पापा की क्वालिटीज़ से मैच करती हैं, दैट मीन्स वी आर सबसेट ऑफ आवर पेरेंट्स। तो सबसेट क्या होता है? बच्चा होता है किसका? सेट का। सबसेट क्या होता है? बच्चा होता है किसका? सेट का। तो सेट इज फादर सेट। सेट क्या हुआ? फादर सेट हुआ। और सबसेट क्या हो गया बेटा? चाइल्ड सेट हो गया। कौन सा सेट हो गया? बच्चे वाला सेट हो गया, राइट ना। तो सबसेट का मतलब क्या हुआ? अगर उसको हम डेफिनेशन में देना चाहें तो सबसेट को हम क्या करेंगे? इफ एवरी, जैसे सपोज कर लो दो सेट हमने लिए ए एंड बी। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी। जैसे हमने क्या कहा था कि हमारा डीएनए हमारे मम्मी पापा के डीएनए से क्या करेगा? मैच करेगा, करेगा ना। तो मतलब हमारे डीएनए का एक एक पार्ट जो है वो हमारे पेरेंट्स के डीएनए से मैच करेगा। दैट मीन्स पार्ट का मतलब वही एलिमेंट हो गया। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज नोन एज सबसेट ऑफ बी। क्लियर? If every element of set A, every element of set A is in set B, then A is subset of set B। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? And it is represented as A is subset of B। ये सिंबल ध्यान रखना बेटा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एग्जाम्पल दे दो, एक एग्जाम्पल दे दो, क्या हम ही दे दे रहे हैं। ए इज इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 3 7 9 एंड एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा बेटा बी 1 2 1 3 7 9 5। इज दैट क्लियर? लुक, एवरी एलिमेंट ऑफ 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 9 भी है और बस ना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इफ इन सेट बी, देन ए इज नोन एज, सबसेट ऑफ बी। अब ये है कि हम बच्चे हैं, हम तो सबसेट हो गए, तो पेरेंट्स हमारे क्या हुए? सुपरमैन। सुपरमैन बोलते ना, हमारे पापा तो सुपरमैन है, तो वही हाल इसमें भी है बेटा। इफ ए इज सबसेट देन बी इज नोन एज सुपरसेट। बी को क्या नाम दिया जाएगा? सुपरसेट। क्लियर ना? तो पेरेंट्स हमारे सुपरसेट हुए, हम उनके क्या हुए? सबसेट हुए। और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? यहां से। कभी कभी ऐसे भी पोजीशंस हो सकती है। क्लियर? ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 7 9, बी के सारे एलिमेंट देख लो आप, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं बट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसी भी पोजीशन हो सकती है कि बी के भी सारे एलिमेंट क्या हो जाए? ए में हो जाए। दैट मीन्स इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब ए जो है वो बी का सबसेट हो और बी किसका सबसेट हो जाए? ए का सबसेट हो जाए। ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर दोनों सेट्स इक्वल होंगे तभी ये पोजीशन पॉसिबल है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए। अदरवाइज बी इज ऑलवेज सुपरसेट ऑफ ए। बी हमेशा क्या होगा? पापा बना रहेगा और ए हमेशा क्या होगा? बच्चा बना रहेगा। ये तभी पॉसिबल है कि जब हम लोग क्या करें, खुद से ही अगर सबसेट निकालना शुरू करेंगे, तभी पॉसिबिलिटीज़ है कि ए इज इक्वल टू बी हो जाए, राइट ना। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटा इंटरवल। क्या आता है बेटा? ये समझ में आया? सबसेट। क्लियर ना? इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये एलिमेंट सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है।
अब इसी के बाद आता है क्या, इंटरवल की बात करते हैं। व्हाट इज इंटरवल्स ऑफ सबसेट। इंटरवल्स का मतलब है, तो ये तो आप जानते ही हो, बट एक बार हम आपको फिर से थोड़ा सा बता दें बेटा। बेसिकली इंटरवल्स दो होते हैं। बेसिक की बात करें तो कितने इंटरवल्स होते हैं बेटा? 2 इंटरवल्स आर देयर। वन इज ओपन इंटरवल एंड सेकेंड इज व्हाट, क्लोज्ड। ओपन, पहला कौन सा इंटरवल होता है बेटा? ओपन। और दूसरा कौन सा होता है? क्लोज्ड। अगर हम बात करें ओपन इंटरवल की, जैसे कहीं पे लिखा है इसे 2,3 इस टाइप से लिखा है, तो दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल। और अगर कहीं पे लिखा है 2,3 इस ब्रैकेट में लिखा है, तो दिस इज व्हाट, क्लोज्ड इंटरवल। अब इसी में 2 पार्ट और भी होते हैं। ऐसा है 2,3 और चौथा है बेटा 2,3, लाइक दिस। सिर्फ डिजाइन देखना ब्रैकेट्स मैंने कैसे लगाए हैं। जब दोनों साइड कर्व ब्रैकेट होता है तो दैट इज नोन एज ओपन इंटरवल। जब दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो दैट इज नोन एज क्लोज्ड इंटरवल। अगर एक पहले क्लोज है बाद में ओपन है तो दैट इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड। और इसको बोलेंगे बेटा क्या? सेमी ओपन। लेकिन अब आप ध्यान दो बेटा, आपके सिलेब बोर्ड में दोनों को ओपन के नाम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों। तो ओपन की टोटल कितनी कैटेगरी दी गई है? 3 कैटेगरीज दी गई है और क्लोज्ड की 1 कैटेगरी दी गई है, दैट्स। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे अगर मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो 0, 1, 2, 3, 4 फॉर ओपन इंटरवल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ओपन इंटरवल के लिए तो 2 भी इंक्लूड नहीं होगा और 3 भी इंक्लूड नहीं होगा। मतलब 2 पे भी हॉलो सर्कल रहेगा, 3 पे भी क्या रहेगा? हॉलो सर्कल रहेगा, और बीच का प्लेस क्या होगा? अंडरलाइन रहेगी, राइट ना। अगर इसी को हम क्लोज्ड इंटरवल के लिए लेके चलेंगे बेटा, तो लाइक दिस 0, 1, 2, 3, 4 फॉर क्लोज्ड इंटरवल 2 भी इंक्लूड रहेगा और 3 भी इंक्लूड रहेगा और दोनों के बीच में लाइन होगी। तीसरे पे आते हैं बेटा सेमी के लिए हम, लाइक दिस 0, 1, 2, 3, 4। 2 पे क्लोज है, 3 पे ओपन है, तो 2 पे सर्कल रहेगा डार्क और 3 पे कैसा सर्कल रहेगा? हॉलो सर्कल, और बीच की लाइन क्या रहेगी? अंडरलाइन रहेगी। क्लियर? और अगर 4th वाले की बात करें बेटा, तो लाइक दिस 0, 1, 2, 3 एंड 4। हियर 2 प्लेस इज ओपन एंड 3 पे क्या रहेगा बेटे? क्लोज रहेगा, तो इस प्लेस को अंडरलाइन कर देंगे। अब इसको, ये तो कौन से फॉर्मेट में था? रोस्टर फॉर्म में था, राइट ना, एलिमेंट फॉर्म में था। अब अगर इसी को इंटरवल को ऐसे लिखना हो तो लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। अगर क्लोज इंटरवल को लिखना होगा तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन आर इक्वल टू 3। ये वाले इंटरवल को लिखना होगा तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन 3 एंड हियर x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन आर इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? इंटरवल्स बहुत ध्यान से समझना बेटा। कितने इंटरवल्स है टोटल आपके सिलेबस में? 2। 1 इज ओपन एंड सेकंड इज व्हाट? क्लोज। ओपन की कितने कैटेगरीज है? 3 कैटेगरीज है। ओपन में 1, 2 और 3। क्लोज की सिंगल कैटेगरी है, एक ही कैटेगरी है, राइट ना। यहाँ पे ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से, और क्लोज्ड इंटरवल को किससे ब्रैकेट से, कौन से ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट से। ओपन इंटरवल की जो दोनों कैटेगरीज हैं वो ये हैं, एक में पहले ओपन है फिर बाद में, पहले क्लोज है बाद में ओपन है, दूसरे वाले में पहले ओपन है बाद में क्लोज है, राइट। अब अगर इसको हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको समझा दिया। जिस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट होगा उस तरफ डार्क सर्कल होगा, जिस तरफ कर्व ब्रैकेट होगा उस तरफ हॉलो सर्कल होगा।
और अगर इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है बेटा तो कैसे लिखा जाएगा, जरा वो भी ध्यान से देख लो। दोनों जिस तरफ कर्व ब्रैकेट होगा उधर ग्रेटर या फिर लेसर का सिंबल लगेगा, बट जिस तरफ स्क्वायर ब्रैकेट होगा उधर ग्रेटर का भी सिंबल लगेगा और इक्वल टू का भी सिंबल लगेगा। तो ये चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको। इज दैट क्लियर? इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो। इतनी 2 मिनट का है, 2 से 2.5 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको फिर से देख लो कैसे किया है हमने और कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो आपको एक बार आसान हो जाएगा। क्लियर ना? चलो इसके बाद बेटा आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डे? इंटरवल्स हो गए बेटा। इंटरवल्स के बाद आपके सिलेबस में है पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? सेट तो पढ़ा ही है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पावर सेट होता क्या है? सेट तो जानते ही हो, जब सबसेट्स का एक सेट बना दिया जाए, क्या बेटा? फिर से ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। फिर से बोल रहा हूं, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं एग्जांपल दे दूंगा, समझ जाओगे। सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट आर कॉल्ड पावर सेट। क्या बोला जाता है बेटा? पावर सेट। जैसे एक सेट लिया मैंने 1,2, कौन सा सेट लिया? 1,2। अब इसके सारे सबसेट्स लिखने चल रहे हैं। तो सबसेट क्या होता था, मैंने बताया था ना, सबसेट क्या? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू द सेट बी, राइट ना। अब अगर मुझे इसका लिखना है तो 5 पहला आएगा। कौन आएगा बेटा? फर्स्ट एलिमेंट इज व्हाट? 5। 5 जितने भी सेट्स होते हैं सबका सबसेट होता है। जितने भी सेट होते हैं सबका सबसेट क्या होता है बेटा? 5। क्योंकि 5, अगर मैं बोलूँ 5 इसमें है 1 और 2 में, तो बोलोगे हाँ सर है। क्यों है? 5 मतलब नथिंग। नथिंग तो हर जगह अवेलेबल है ना। वैसे वो बोलते हैं भगवान देखने में तो कहीं नहीं दिखता, बट होता सब जगह है। तो वैसे 5 क्या है? एक सेट है, वो लिख दिया। नेक्स्ट आएगा बेटा 1, दूसरा सबसेट। सबसेट हमेशा अलग अलग लिखा जाता है और याद रखना ब्रैकेट में लिखा जाएगा। दूसरा क्या आएगा? 2, राइट? 1, 2 और एक क्या हो सकता है बेटा? 1,2 हो सकता है। अब इनका भी एक क्या बना दिया हमने? सेट। दिस इज नोन एज पावर सेट ऑफ ए। समझ में आया? जैसे सेट क्या था? ए था, 1 और 2, उसका पावर सेट हमने बनाया, ये बन गया। अब इसमें कितने सेट हैं? नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है बेटा? 1, 2, 3, 4। कितने हैं? 4। इसका फार्मूला होता है 2 to the power n। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। अब एक दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं बेटा। सपोज कर लो मैंने लिया एक सेट ए लिया 1, 2, 3। अब इसमें कितने, इसके कितने पावर सेट होंगे? तो n तो आप बता सकते हो ना, n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। ये तो आपको पता ही चल गया। बट अभी आपको पावर सेट की क्वांटिटी पता हुई है कि पावर सेट कितने होंगे। जरा पावर सेट भी लिख लेते हैं। तो पहला पावर सेट तो अगर लिखना होगा मुझे, तो पावर सेट ऑफ ए लिखना होगा बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? 5। सबसेट्स लिखे जाते हैं, फिर सबसेट्स का एक क्या बना दिया जाता है? सेट बना लिया जाता है। तो पहला सबसेट क्या होगा? 5। नेक्स्ट क्या होगा? 1। नेक्स्ट 2 भी हो सकता है, देख लो 1, 2 और उसके बाद क्या हो सकता है? 3। पहले सिंगल सिंगल लिया, अब डबल डबल लेते हैं। 1, 2, 1 और 2, फिर क्या बेटा? 2, 3, फिर 1, 3
डबल डबल भी हो गए सारे, चेक कर लो, 1 2 2 3 1 3। अब ट्रिपल ट्रिपल लेते हैं, ट्रिपल ट्रिपल लेंगे तो कौन सा आएगा बेटा, 1 2 3। और इनका भी क्या बना लिया हमने, एक सेट बना लिया। क्या बना लिया, इनका भी एक सेट बना लिया। तो ये क्या बन गया, अब पावर सेट बन गया। क्या बन गया, पावर सेट बन गया। अब इसकी क्वांटिटी जरा देखो, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखो उसी के इक्वल आया या नहीं आया, तो ये हो गया आपका पावर सेट। तो सबसेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, सबसेट्स किसके, सेट के, मतलब सेट के जितने भी सबसेट्स हैं वो लिखो और उनका क्या बना दो, एक सेट बना दो, दैट इज नोन एज पावर सेट। कैसे लिखा जाता है समझ में आ गया बेटा, क्लियर ना, एनी डाउट। अब इसी के साथ ही आज की क्लास खत्म होती है बेटा। नेक्स्ट डे वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज द एक्सरसाइज नंबर 1.3। अगर आप कोशिश करोगे तो शायद इसके क्वेश्चंस भी आप खुद कर ले, बट अगर ट्राई करोगे तो, अदरवाइज नेक्स्ट डे की क्लास में, नेक्स्ट डे के वीडियो में हम तो आपको आके एक्सप्लेन करेंगे। डन ना, ओके, चलो बाय बाय।